ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਟਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ 9 महीने कुख च रखिया, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर एक्सट्रीम डिप्रेशन में हैं तो उनको नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि ना हम खुद समझ पा रहे हैं, ना हमारे फैमिली मेम्बर्स ने उस चीज़ पे ध्यान दिया है कि इस चीज़ का कुछ इलाज किया जाए। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ? बिल्कुल मतलब मानसिक जो रोग है ये वही, आप इतनी बुरी कंडीशन में हो चुके हैं कि आप इतनी ऐसी ख़राब चीज़ें कर रहे हैं। क्राइम की टेंडेंसीज हैं वो डेवलप हो गई हैं कि हमें डर नहीं है किसी चीज़ का। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਿਲਾਸ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। उनका जो गुस्सा है, जो एंगर जिसको हम कहते हैं, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। उनको वो कंट्रोल करना ही नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के साथ क्या हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको हमने मैनेज कैसे करना। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਭੜਾਸ ਕੱਢਣੀ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। एंगर एक्सप्रेस करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भी टेक्निक है। आपको पता ही नहीं है कि मेरा एक्शन हो क्या रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, तो वो नॉर्मल नहीं है। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਕੋਲ पागल बंदे जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। जैसे आप दोस्त से बात करते हैं किसी, वो बिल्कुल वैसे ही है। जो बात कहेंगे वो 100% कहीं कभी बाहर नहीं जाएगी। शायद साडे पेरेंट्स, साडे मापे इन्ने समर्थ नहीं हैगे कि ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼ਾयद ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਹ ਪੇਜ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को प्रपोज किया है कि इस तरह की एजुकेशन दी जाए, बट हर किसी से नहीं। ट्रेंड उसके लिए साइकोलॉजिस्ट हों, ट्रेंड काउंसलर्स हैं जिनको पता है कि किस एज ग्रुप में कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? मैं वो गाड़ी ले लूँ तो मुझे खुशी होगी, मैं वो बड़ा घर ले लूँ तब मुझे खुशी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। खुशी कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा आपकी चारों तरफ फैली हुई है। सिर्फ उसको देखना है, फील करना है एंड कीप योर माइंड ओपन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਖਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਰੂ ਅਤਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨੀਰੂ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? जी देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं और अगर कारणों की बात करती हूँ, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त कोई स्ट्रेस चल रहा है, इमोशनल हैंडलिंग जो है वो उनको नहीं आती है, एंगर मैनेजमेंट जो है उसकी वो टेक्निक्स नहीं आती हैं,
पेशेंस जो है वो उनको नहीं पता है कि पेशेंस रखने का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है ना। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और जो आपने एग्जांपल्स दिए इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हो सकता है कि कोई मानसिक बीमारी का वो शिकार हो जिसको उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया, जिसका कोई कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है, तो बहुत से कारण हो सकते हैं। जी हाँ, गुस्सा ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਅਟਪਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਿਲਾਸ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। देखिए, हो सकता है कि कोई मानसिक रोग हो, एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ हमने जैसे बात किया कि हो सकता है कि उनका जो गुस्सा है, जो एंगर जिसको हम कहते हैं, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, उनको वो कंट्रोल करना ही नहीं आ रहा है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। और बहुत बार क्या होता है कि लोगों की लाइफ में, जैसे देखिए सबकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, है ना, सबकी लाइफ में तकलीफ भी है, परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको हमने मैनेज कैसे करना है ना, और वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं इन चीज़ों पे। और यही कारण है जैसे आपने कहा कि वो मारपीट पे उतर आएंगे या किसी चीज़ पे उतर आएंगे, है ना। तो ये इस तरह के बहुत सारे। एक माँ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਟਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ समझ नहीं आ रही क्योंकि माँ ਦੀ ममता ही सारे नालों ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ है। जी नहीं, देखिए क्या होता है ना कि अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई मानसिक बीमारी है ना, अगर कोई मानसिक बीमारी है तो उस मानसिक बीमारी का ये कारण, ये जो रिजल्ट जो आप कह रहे हो कि ये सब हो रहा है, ये मानसिक बीमारी का की वजह से हो सकता है। बहुत सी मानसिक बीमारियां होती हैं, जैसे कभी कभी लोग एक्सट्रीम डिप्रेशन में हैं, ठीक है ना। अगर एक्सट्रीम डिप्रेशन में हैं तो उनको नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और मतलब बहुत सारी ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिसमें इंसान का अपने पे कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ना हम खुद समझ पा रहे हैं, ना हमारे फैमिली मेम्बर्स ने उस चीज़ पे ध्यान दिया है कि इस चीज़ का कुछ इलाज किया जाए, है ना हम खुद कुछ कर पा रहे हैं उस चीज़ के लिए। कि इन्हां नूं पागल किया जा सकता है? नहीं, देखिए साइकोलॉजी में हम ये पागल वर्ड तो नहीं यूज करते, ठीक है नहीं, क्योंकि आम भाषा दे विच जिहड़ा दिमागी तौर पे बीमार है वो पागल है। नहीं, हमारी टर्मिनोलॉजी बहुत अलग होती है, हम साइकोलॉजी में ऐसे ये शब्द नहीं यूज करते, ठीक है। बट हम ये जरूर कहते हैं कि डेफिनेटली कोई ना कोई मानसिक रोग तो है, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी इंसान कभी भी ऐसी चीजें नहीं करेगा, है ना। वो समझता है सिचुएशन को, वो सिचुएशन को हैंडल करना जानता है। अगर एंगर के इश्यूज हैं तो वो उसको भी कंट्रोल करना जानता है। तो पागल वर्ड नहीं कह सकते, बट यस कुछ मेंटल डिसऑर्डर जरूर है, है ना, कोई मेंटल इलनेस जरूर है। तो इस तरह की चीज़ तो डेफिनेटली है। गुस्सा भी तो किते ना किते आना जरूरी है ना जिंदगी च। जे कहंदे ने हसना जरूरी है तो रोना भी किते ना किते जरूरी हुंदा, पड़ास कढनी। तो गुस्सा भी तो जिंदगी दा संतुलन बनाउण दा हिस्सा ही है। देखिए कहते हैं ना कि एंगर इज अ पावर, एंगर इज अ फोर्स, बट इफ इट इज यूज्ड इन अ राइट सेंस, है ना। गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करना है, गुस्से का कहाँ किस तरह से उसको प्रोडक्टिव तरीके से यूज करना है, वो एक कला है, ठीक है ना। जैसे आपने कहा एंगर एक्सप्रेस करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भी टेक्निक है कि आप असर्टिव तरीके से सही टाइम पे सही शब्दों के साथ और सही अप्रोच के साथ उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसका बेनिफिट है, आपको रिजल्ट आएंगे। बट अगर आप बिना सोचे समझे, बिना उसके रिजल्ट्स को देखे, बिना आप ये रैशनल थिंकिंग के कि आपको पता ही नहीं है कि मेरा एक्शन हो क्या रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, है ना, आपको अपने उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता है, आपको उसके रिजल्ट्स नहीं पता है, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। और उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जैसे है कि जानने की कोशिश करें, अगर नॉर्मल भी अगर कंडीशंस में आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप देख रहे हैं कि गलत तरीके से एक्सप्रेस किया गया गुस्सा हमेशा आपको नुकसान दिलाएगा, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानने की कोशिश करें कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा है। इसके कारण बहुत हो सकते हैं, है ना, या तो जैसे हमने कहा कि वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है आपकी लाइफ में, आप उसको हैंडल कीजिए,
कोई लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है तो भाई उसको मैनेज कीजिए। हो सकता है इसके अलावा मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं कि आपका स्लीप नहीं हो रहा है, नींद नहीं ठीक से आपकी हो रही है, आपके बॉडी के विटामिन्स वगैरह है वो लो चल रहे हैं, आपने कभी टेस्ट ही नहीं कराया उनको, है ना, आप ब्लड टेस्ट के थ्रू उनको टेस्ट कराइए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, यानी फ्रस्ट्रेशन कहीं का है और वो कहीं और पे निकल रहा है। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੌਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ये तो बिल्कुल मतलब मानसिक जो रोग है ये वही है ना, मतलब इतना डैमेज आपका मेंटल हेल्थ हो चुका है, आप इतनी बुरी कंडीशन में हो चुके हैं कि आप इतनी ऐसी खराब चीजें कर रहे हैं। हैवानियत ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਕਦੇ? तो हैवानियत तो मतलब ये एंगर नहीं है, ये तो अलग ही चीज आ गई ना, ये तो क्राइम में आ गया बिल्कुल, है ना, कि आप गुस्सा क्राइम का हिस्सा जरूर है, क्रिमिनल आपकी मतलब क्रिमिनल ही मेंटालिटी हो गई है ना। ये तो वो वाली चीज आ गई कि आप एक अलग ही उसमें चले गए हैं, यानी कि एंगर वर्ड नहीं बोल सकते हैं इसको, ये एंगर नहीं है, ये तो या तो हमारी कुछ मानसिक रोग है कुछ, है ना, या फिर हमारे अंदर जो क्राइम की टेंडेंसीज हैं वो डेवलप हो गई हैं कि हमें डर नहीं है किसी चीज़ का, है ना। तो ये तो बहुत अलग चीज़ है, ये नॉर्मल कंडीशंस तो बिल्कुल भी नहीं। ਸਮਝਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਲਾਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗਲਾਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ, ਉਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੌਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੌਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ मतलब वखरेवा की है, वखरा किवें है? देखिए इसमें बहुत फ़र्क है। जैसे मैंने कहा कि ये तो मतलब, और अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करती हूँ जिन्होंने ये चीज़ें की, बिल्कुल वो एक दिन में नहीं होता है। ये ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप कहें कि अचानक किसी ने ऐसी चीज़ कर दी, ऐसा कभी नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेवल पे उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं, पहले भी प्रैक्टिस करते रहे ने, इसको प्रैक्टिस कह लिए सी। हाँ, किसी भी फॉर्म में किए, चाहे उन्होंने अपने घर में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाए हैं या सोसाइटी में दिखाए हैं, मतलब वो अचानक आदमी इस लेवल पे नहीं आता है। तो वो जो मानसिकता थी, है ना, जो विकृत मानसिकता जिसको हम कहते हैं, सो वो एकदम से डेवलप नहीं होती है। ये बहुत सालों से थोड़ी करके बिल्ड हुई है, जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया, घर वालों ने भी नोटिस नहीं किया, या नोटिस करके चुप रह गए, इग्नोर किया। आसपास की सोसाइटी ने नोटिस किया कि ख़राब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। तो ये बिल्ड होते होते इस लेवल तक आती है, अचानक से नहीं होता है। ये जो भी मानसिकता है या जो कोई मानसिक रोग है जो इस तरह की लेवल पे आते हैं, वो एक दिन की चीज़ कभी भी नहीं है। ये बहुत टाइम से चल रहा है, जिसको ना पनिशमेंट कभी किया गया, या बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और घर में भी क्या होता है कि हम फैमिली में देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम इग्नोर करते हैं कि अरे जाने दो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, या ठीक है, इट्स ओके, बिल्कुल, है ना। या फिर क्या होता है कि फैमिली में कभी छोटी घटनाएं डेफिनेटली हुई होंगी कि घर की ही किसी लड़की के साथ कुछ चीज़ की, बिल्कुल छोटी हरकत की, कुछ और किया, मतलब इस तरह की चीज़ हुई, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने बताया नहीं, है ना, कि उस चीज़ को छुपा दिया गया। तो बेसिकली इन लोगों को या तो सज़ा नहीं कभी मिली, या कभी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, या कभी इन पे ध्यान नहीं दिया गया, या इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो ये एक दिन की चीज़ नहीं है। मेरा ये कहना, कह रहे हो कि हौली हौली बिल्डअप हो रही है, बहुत सालों से ये चीज़ बिल्ड होती है, और सबको पता होता है फैमिली में। ये कहना गलत है कि नहीं पता होता है, सबको पता होता है कि बच्चा में किस तरह की मानसिकता जो है वो बढ़ रही है, बट इग्नोर किया जाता है, नोटिस नहीं किया जाता, अनअटेंडेड रह जाता है। हल किया, सोल्यूशन किया, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼ਾयद अध्यापक भी वो पेज पलटन ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वही है कि जैसे आपने कहा टैबू है ना, ये टॉपिक्स ही टैबू हैं हमारी सोसाइटी में। सो डेफिनेटली बहुत से लोगों ने इस चीज़ को प्रपोज किया है कि इस तरह की एजुकेशन दी जाए, बिल्कुल, बट हर किसी से नहीं कि हर कोई सेक्स एजुकेशन देना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ट्रेंड उसके लिए साइकोलॉजिस्ट हों, ट्रेंड काउंसलर्स हैं जिनको पता है कि किस एज ग्रुप में कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है। हो क्या रहा है अभी आप देखिए, मोबाइल आप उठा लीजिए, इंटरनेट उठा लीजिए, इतनी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी एज के लिए है ही नहीं। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾजिब ਹੁੰਦੀ ਹੈ, दुरुस्त ਹੁੰਦੀ है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन वाजिब है या नहीं है, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ओवरलोडेड है ना इन्फॉर्मेशन। मतलब किस एज में कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कहीं पर बैरियर ही नहीं है ना। बच्चे कोई भी कुछ भी साइट खोल के कुछ भी देख सकते हैं। सो उस पर कोई टैबू ही नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई बैरियर ही नहीं है उसके ऊपर, है ना। तो खैर ये चीज़ है कि भाई पहली चीज़ मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, ये एजुकेशन ज़रूर दी जाए, बट ट्रेंड लोगों के द्वारा दी जाए, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, है ना, हर स्कूल में काउंसलर्स हैं अभी, वो इस तरह के सेशन जैसे गर्ल्स के साथ करते रहें। आजकल तो खैर बॉयज़ के साथ भी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं मैं कह सकती गर्ल्स के साथ ही, बट चलो मेजॉरिटी है ना, तो उनके साथ वो बार बार सेशंस करें, अवेयर करें कि भाई किस तरह से ऐसे लोगों के लक्षण को पहचानना है, क्योंकि सिम्टम्स तो दिखते हैं ऐसे लोगों के, ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा सोसाइटी में सबको दिखते हैं बट कोई कुछ कर नहीं रहा है ना। तो सिम्टम्स को कैसे नोटिस करना है, अपने आप को कैसे सेव करना है, चीज़ हो जाती है तो रिपोर्ट कैसे करना है। 80% लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनके साथ कुछ होता है वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। सो जब रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ फैलेगी, उस इंसान की हिम्मत तो बढ़ेगी ना। उसने एक के साथ गलत किया, वो रिपोर्ट नहीं हुआ, वो 4 के साथ गलत करेगा, राइट। सो अगर एक के साथ कुछ गलत हुआ, ठीक है, उसके साथ गलत हुआ, लेकिन अगर उसने रिपोर्ट किया तो वो 4 को बचा देगी। तो ये अवेयरनेस नहीं है। तो ये इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों तो आई थिंक ये चीज़ें हेल्प करेगी। और पेरेंट्स को एजुकेट करें, पेरेंट्स खुद छुपाते हैं चीज़ों को, मैं वही गल है ना, कि नहीं पता नहीं चल जाए, तो पेरेंट्स को एजुकेट करना, ये चीज़ शुरू होनी चाहिए। डेफिनेटली पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो काम तो बहुत है इसमें जो अभी करने की ज़रूरत है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2021 ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ? नहीं, देखिए अभी हम 2022 में हैं तो सॉरी 2022 सॉरी मैं मेरी गलती है 2022 ਚ बैठे हैं ਤੇ ਆਪਾਂ लगता देखिए फ़र्क तो आया है ना। अभी हम ये देखते हैं कि बहुत लोग अभी ओपन अप हो रहे हैं, वो काउंसलिंग के लिए आना शुरू हो गए हैं। और इवन स्कूल्स में हम देखते हैं कि बच्चे आते हैं, वो बात करते हैं, वो एटलीस्ट शेयर करना शुरू कर दिया है। तो चेंज तो आया है, वो टैबू धीरे धीरे कम तो हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत काम हो रहा है। तो काम ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਕੋਲ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ जी। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं, बिल्कुल सही है। और मैं ये सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सब दर्शकों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 अलग अलग होते हैं। एक साइकेट्रिस्ट होता है जो आपको मेडिसिन्स देते हैं जब अगर कोई सच में मानसिक बीमारी है। एक होता है साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर। साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर आप ऐसे मान के चल लेते हैं जो ऐसा कुछ मेडिसिन या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, और वो सिर्फ आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और आपको वो टेक्निक्स बताते हैं, उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है उसमें हेल्प करते हैं। सो वो सिर्फ एक जैसे आप दोस्त से बात करते हैं किसी, वो बिल्कुल वैसे ही है। और सबसे बड़ी बात है कि 100% कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि आप जो बात कहेंगे वो 100% कहीं कभी बाहर नहीं जाएगी। तो लोगों को ये भी डर होता है ना कि हम बात करेंगे तो कहीं बाहर, पर गल करनी चाहिए, बिल्कुल बात करें, बिल्कुल बात करें। मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी की 60% प्रॉब्लम्स बात करने से हल हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम मन में रखते हैं तो वो क्या होता है, बिल्ड होते होते एक पहाड़ की तरह बन जाता है और हमको वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगने लगती है।
तो ज़रूर बात करें। इसमें ऐसा वाली चीज़ नहीं है कि आपको कुछ मानसिक बीमारी है, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत लोग, हेल्दी लोग भी आते हैं बात करने के लिए, ठीक है, कि हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन और बेटर कैसे करें, ये चीज़ हमें रोक रही है, कॉन्फिडेंस कम है, ये चीज़ कम है, तो कैसे बिल्ड करें जी। तो थोड़ा सा आई थिंक हेल्प करेगा आपको, आपकी लाइफ को, आपके बच्चों को, अगर आप बात करते हैं तो। ਪਰ ਨੀਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ 'ਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। जी देखिए, ये बात वही है कि कहते हैं ना, एक मोमेंट, अगर पेशेंस का आपने एक मोमेंट रख लिया है ना, तो आप बड़े से बड़े ज़िंदगी में पॉजिटिव आप हासिल कर सकते हैं। और सेम तरीके से अगर पेशेंस का आपने इम्पेशेंट हो गए, गलत एक मोमेंट के लिए आपका माइंड आपने कर दिया, तो आप बड़े से बड़ा तूफान भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सबके लिए ये चीज़ बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि देखिए गुस्सा आने में प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन हमको ये समझना है सबसे पहली चीज़ कि गुस्से को हैंडल कैसे करना है ना। तो पहली चीज़ हम अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे हमने कहा कि थोड़ा सा अवेयर होइए कि मुझे गुस्सा किन किन सिचुएशन में आता है ना, और वो ट्रिगर्स हम उसको कहते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये सिचुएशंस मैं अवॉइड करूं क्योंकि ये मेरे ट्रिगर्स हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो इमीडिएटली आपको अपने आप को एटलीस्ट 10 तक काउंट कर लो, 20 तक काउंट कर लो, 30 तक काउंट कर लो। बड़ी पुरानी ट्रिक है पर लोग शायद यूज नहीं करते। वो क्यों होता है? वो इसलिए कहते हैं कि डिले होता है, उससे आपका डिसीजन डिले होता है ना। कि एंगर आया, थोड़ा सा आपने काउंटिंग कर लिया, कुछ कर लिया। काउंटिंग का मतलब, काउंटिंग से कुछ नहीं है, बेसिकली डिले करना है। वो डिसीजन जो आप सोच रहे हो वो डिले करना है ना। सो आप थोड़ा सा ये करके देख लीजिए। फिर तीसरा चीज़ है कि देखिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। गुस्से का सबसे बड़ा जो बेस है वो फ्रस्ट्रेशन है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, दुनिया को ये मिल गया, मुझे ये क्यों नहीं मिल गया। तो फ्रस्ट्रेशन से ये क्यों खुश हैं, इनके पास इतनी बड़ी गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, राइट। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। एग्जैक्टली। तो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, फ्रस्ट्रेशन एंगर में कन्वर्ट होता है। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हर एक के पास जो चीज़ें हैं हम उसको थोड़ा रियलाइज़ करें कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हो सकता है वो दूसरे के पास नहीं है। तो जिसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड, कि थोड़ा थैंकफुल भगवान का हम होना शुरू करें कि हमारे पास भी कुछ चीज़ें तो हैं। शुक्राना करना ज़रूरी है, शुक्राना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना करने से भी एंगर हमारा एक तो कम होता है। दूसरा चीज़ है कि आप प्लीज़ मॉनिटर करें कि अगर बहुत ज़्यादा एंगर हो रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आप डॉक्टर से मिल लीजिए, थोड़ा सा अपना ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हो, है ना। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपैरिजन नहीं करें। हम दूसरे से कंपेयर बहुत करते हैं, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में बहुत स्पेशल है। सो आप बहुत स्पेशल हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है जी। फिर चौथी चीज़ है कि आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को देखिए कि बहुत ज़्यादा हम स्क्रीन, तो क्यों गुस्सा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, कहीं हमारा ऐसा तो नहीं नींद पूरी नहीं हो रही है हमारी, है ना। कम से कम 8 घंटे 7 घंटे की नींद ज़रूर पूरी हो। कहीं ऐसा तो नहीं हम पानी नहीं पी रहे हैं और डिहाइड्रेशन हो रहा है, वो एंगर में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, है ना। क्योंकि ये सारा कुछ रिलेटेड है। जैसे हमने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो बॉडी में विटामिन होते हैं वो कम है तब भी एंगर आता है, गुस्सा आता है। तो प्लीज़ आप टाइम टू टाइम अपने ब्लड टेस्ट जो है वो कराते रहिए। यानी ये हो सकता है कि आपका जो खाना है वो ठीक नहीं हो रहा है, या आपका जो काम है, जॉब है, आप उसमें खुश नहीं है। सो वो हो सकता है वर्कलोड ज़्यादा है, आपको अपने रिलैक्स करने को टाइम ही नहीं मिल रहा है, आपको फैमिली के साथ अच्छा टाइम नहीं मिल रहा है, राइट। और बहुत टाइम से आपने कोई छुट्टी नहीं ली, आप कोई हॉलीडे पे नहीं गए हैं, है ना। तो फ्रस्ट्रेशन आएगा ही, काम कर रहे हैं। ਨੀਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ भाई टाइम पे। बिल्कुल लीजिए थोड़ा फन, और पूरे दिन में जो जितना मर्जी काम हो, कुछ टाइम हम ज़रूर अपने लिए निकालें, है ना। तो वो हमको देखना पड़ेगा। पहले सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिफाई करें कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या है ना। तो वो आइडेंटिफाई हो गई।
फिर आइडेंटिफाई होने के बाद में फिर उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं वो आप 10 तरीके जब सोचेंगे तो रास्ते भी निकलेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ। WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। बिल्कुल, देखिए सिर्फ व्हाट्सएप की बात नहीं है, सोशल मीडिया पूरा, ठीक है, चाहे वो आपका फेसबुक है, चाहे आपका इंस्टाग्राम है या और चीज़ें हैं या व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया जो भी है वो एंगर का एक कारण तो है ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना। एक तो इतनी इन्फॉर्मेशन है और 24 घंटे आप कनेक्टेड हो, है ना, आप नहीं चाह रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको एडिक्शन तो हो गया है, कोई करेक्शन है ना, आपको उसमें देखना है, आपको कोई उसमें जवाब देना है। ऐसे ही सेम चीज़ आप सोशल मीडिया पे मान लीजिए फेसबुक पे देखते हैं, अरे कोई लोग तो गोवा जा रहे हैं घूमने, कोई तो यहाँ जा रहे हैं, राइट। सो वो देख के और फ्रस्ट्रेशन आता है, हम तो काम कर रहे हैं यहाँ बैठ कर, लोग हॉलीडे कर रहे हैं, ठीक है, राइट। लोगों ने अपनी अच्छी पिक्चर डाल दी, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आएगा, एंगर आएगा कि देखो वो तो कितना अच्छे दिख रहे हैं, हम तो मिसफिट हैं या जो भी है ना, वो चीज़ है। अगेन आपका अब क्या प्रॉब्लम एक और हो गया है कि सबका काम आजकल व्हाट्सएप पे चलने लगा है ना, आपको इमीडिएट जवाब देना है। सो वो सब है चीज़ें। देखिए, अब उस टेक्नोलॉजी को हम नहीं कह सकते कि बंद कर दो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि कुछ हम करें। जैसे हम ये कर सकते हैं कि पूरे दिन में एक टाइम हम ऐसा निकाल लें कि एटलीस्ट उतना देर हम डिले कर दें, उतना देर नहीं देखें, है ना। या फिर जो इतने ग्रुप्स बने हैं सब पे जवाब नहीं दें, सबके मैसेजेस नहीं देखें, प्रायोरिटी रखें कि ओके ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये देखना है। तो और सुबह सुबह उठ के सारी दुनिया के गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजना करना अवॉइड कर दें, मतलब मिनिमाइज कर लें। बिल्कुल, जिंदगी ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ थोड़ा ਜਿਹਾ टाइम दीजिए, मिनिमाइज कर लें जितना मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर सोशल मीडिया आपको बहुत बॉदर कर रहा है और अगर आपको नुकसान नहीं है तो कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक ले लें, बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ फील होगा उससे। ਬ੍ਰੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ मैं बताती हूँ कि खुशी ना बड़ी बड़ी चीज़ों का इंतज़ार करने में नहीं है कि मैं वो गाड़ी ले लूँ तो मुझे खुशी होगी, मैं वो बड़ा घर ले लूँ तब मुझे खुशी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर आराम से अपने आसपास हर रोज़ की ज़िंदगी में देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको खुशियाँ मिल जाएगी। सो हर चीज़ पे थोड़ा कोशिश करें कि मुस्कुराएं, थोड़ा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, चीज़ों को लाइटली लें, थोड़ा काम रहने की कोशिश करें, है ना। हर चीज़ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती है ज़िंदगी में, है ना। तो वो एक चीज़ें हैं। और आसपास के लोगों से कनेक्ट कीजिए। हम क्या करते हैं कि आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम काम के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम जो हमारे फ्रेंड्स हैं या जो हमारे वेल विशर हैं, जो लोग हमको प्यार करते हैं, है ना, हम उनकी तरफ नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा कनेक्शन उनके साथ बिल्ड कीजिए। कुछ नहीं है, 2 मिनट उनसे बात कर लीजिए ना। तो अपने आसपास एक तो ये चीज़ कीजिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हैप्पीनेस चाहिए अपने एक्सरसाइज ज़रूर करें। बिल्कुल, फिज़िकल हेल्थ अगर हम मतलब हमारी और मेंटल हेल्थ ठीक है, उसके लिए उससे बड़ी हैप्पीनेस कुछ नहीं है। सो थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें जिसमें आप फिज़िकल एक्सरसाइज करें, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेल लें, है ना, ये एक चीज़ करें। और इसके अलावा पूरे दिन में आप ज़रूर चाहे आधा घंटा निकालें, ऐसा टाइम ज़रूर निकालें कि उस आधे घंटे में वो चीज़ आप करें विच मेक्स यू हैप्पी। सब तो बड़ी गल मैं ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ सके। बिल्कुल। और हफ्ते में एक आधा दिन ज़रूर ऐसा रखें कि जो आपको अपने लिए टाइम आपका निकल पाए, है ना। और ये आप बिल्कुल मत कहिएगा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ एक माइंडसेट होना चाहिए कि ओके मुझे पर्सनल केयर भी करना है। पर्सनल केयर में ये सारी चीज़ें आती हैं, आपका यू नो फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। सो खुशी कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा आपकी चारों तरफ फैली हुई है।
सिर्फ उसको देखना है, फील करना है एंड कीप योर माइंड ओपन। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਲੈਲਾ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭੂਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਊਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।